صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ در شبیر کی مٹی گر ہمارے سر کا تاج ہو جائے، شبیر کی مٹی ہمارے سر کا تاج ہو جائے تو یقیناً میری تقدیر کی معراج ہو جائے، تو یقیناً میری تقدیر کی معراج ہو جائے۔ اور خیرات دینا بند کر دے گر کربلا والے، خیرات دینا بند کر دے گر کربلا والے، یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ اور ہم سب کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے واضح آبا واجدہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سبحان اللہ، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آئیے ہم تمامی حضرات آگے سے پیچھے تک ایک آواز ہو کر ہم سب کے نبی، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، بے چاروں کے چارے، ڈوبی ہوئی کشتی کے کھیون ہار جناب احمد مختار محمد مختار کی بارگاہ گہر پار میں ہدیہ درود پاک پڑھ لیں، بآواز بلند سارے لوگ مل کے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر سام سے لے کر اب تک آپ نے نعت و منقبت، واض و بیان حضرت حافظ محمد عارف نوری مدد اللہ العلی و حافظ فرقان قادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمائے۔ شاعر اسلام مدح خیر الانام بلبل باغ رضا حضرت مولانا اسرار القادری صاحب قبلہ دامہ ظلہ نورانی سے آپ نے منقبتیں اور نعتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ اتنی محنت کرتا ہے، اب آپ سمجھے کتنی محنت کرتا ہے، اس کی محنت ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جب بستر پر لیٹے پوری رات اگر جسم کے اندر درد ہے، آپ کروٹیں بدلتے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی، مگر وقت فجر آتا ہے فوراً نیند آ جاتی ہے، جسم کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں شیطان قبضہ کر لیتا ہے بدن کے اوپر انسان کے، اور پیروں ہاتھوں کو دبانا شروع کر دیتا ہے، اور فجر کے وقت نیند آ جاتی ہے، اور جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے شیطان نکل جایا کرتا ہے، شیطان نکل جایا کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے سامنے ایک ڈبیٹ کیا گیا، یہ بتاؤ برکت کیا چیز ہے؟ برکت کا ہم یقین نہیں رکھتے کہ برکت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا برکت ہوتی ہے، مگر سوال کرنے والے نے کہا کہ مجھے نہیں یقین ہے کہ برکت ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ثابت کرو کس طرح سے برکت ہوتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، یہ تم غور کرو کہ سال میں کتا کتنے بچے جنتا ہے، سال میں کتا کتنے بچے جنتا ہے؟ کم سے کم 7، 8، 5، 4 کتنے بچے کتا رکھتا ہے، مگر سال میں اتنے کتے کے بچے نہیں پائے جاتے ہیں، مگر بکری سال میں 2 یا 3 یا 4 بچے دیتی ہے، جو جبا بھی ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، بیچا بھی جاتا ہے، مگر بکریوں کی تعداد کیوں کم نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں کم ہوتی ہے کہ بکری پوری رات سو کے فجر کے وقت جاگ جایا کرتی ہے، اس لیے ان میں برکت ہو جایا کرتی ہے، اور کتے پوری رات جاگ کے فجر کے وقت سو جایا کرتے ہیں، اس لیے ان سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس لیے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔
हम सोचते हैं हमारे घर में बरकत नहीं होती, बाप अलग मेहनत करता है, बेटा अलग मेहनत करता है, माँ अलग मेहनत करती है, बहन अलग मेहनत करती है, मगर घर के अंदर बरकत नहीं होती। बरकत का जरिया यही है कि हम फजर के बाद तक अपने बिस्तरों के ऊपर लेटे रहते हैं। अगर फजर से पहले, अजान से पहले बिस्तर को छोड़ दिया जाए तो मेरे भाई जिस्म के अंदर जितनी बीमारियां हैं, मैं 100% ये कहता हूँ कि जब सुबह फजर से पहले आदमी उठता है, एक हवा चलती है, एक हवा चलती है, जो 1 घंटे का टाइम रहता है, वो हवा जिस्म से लग जाती है। उलमा फकराते हैं उस हवा, वो हवा मदीने से आके हो जाती है, वो हवा जिसके जिस्म के अंदर लग जाती है, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन 80 बीमारियों को खत्म कर देता है। उससे दिन भर इंसान के जिस्म के अंदर फुर्तीली पैदा रहती है, और जो फजर के वक्त तक, फजर के बाद तक सोया रहता है, उसे ऐसा मालूम होता है ये काफी सालों का बीमार है, ये काफी सालों का परेशान है, और घर में बरकत नहीं होती। घर के अंदर बरकत नहीं होती है, हम गौर नहीं करते मेरे भाई। अब रातों को उठ के जोश में महबूब करदिगार फिरते थे गिर्द खाना जोहरा के बार बार, आवाज सुनते थे जो नवासों की रोने की, फरमाते थे पुकार के जोहरा से यूं नबी। जब इमाम हसन रोया करते थे, जब इमाम हुसैन रोया करते थे, आका हजरत फातिमा के घर का गश्त किया करते थे, आका हजरत फातिमा के घर के आंजर पांजर घूमा करते थे, और जब कोई बच्चे के रोने की आवाज आती, फातिमा के दरवाजे के ऊपर दस्तक देते, ऐ मेरी प्यारी बेटी बताओ इमाम हुसैन क्यों रो रहे हैं, इमाम हुसैन किस लिए रो रहे हैं, बताओ तो क्यों रो रहे हैं। हजरत फातिमा फरमाती कि बाबा जान किस मसले से रो रहे हैं। फरमाया बेटी तुम्हें नहीं मालूम है, इन्हें चुप कराओ। इमाम हुसैन जब रोते हैं ना तो मेरे दिल के अंदर बेचैनी पैदा होती है, मेरे दिल को तकलीफ होती है। इसीलिए फरमाया रातों को उठ के जोश में महबूब करदिगार फिरते थे गिर्द खाना जोहरा के बार बार, यानी अपनी बेटी हजरत सैयदना निसा फातिमतु ज़हरा के घर के इर्द गिर्द घुमा करते थे। अगर हम आपसे पूछ ले हजरत फातिमा के कितने नाम हैं, ज़हरा हमने पढ़ दिया, बहुत कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि ज़हरा किसका नाम है। या प्यारे नबी की बेटी का नाम ज़हरा है, प्यारे नबी की बेटी का नाम सैयदतुन निसा है, प्यारे नबी की बेटी का नाम तैयबा है, प्यारे नबी की बेटी का नाम ताहिरा है, प्यारे नबी की बेटी का नाम आबिदा है, प्यारे नबी की बेटी का नाम जाहिदा है, प्यारे नबी की बेटी का नाम फातिमा। जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा। इसलिए पुरानी किताबों के पीछे ना पड़ो, सारा मसला वही है जो पुराना था। अगर किताब नई खरीद ली जाए तो वो नई नहीं हो जाती, वरना तो सारी कुरानों को बंद कर देना पड़ेगा कि जो कुरान पहले पढ़ा जाता था वही कुरान लाया जाए, नहीं मिलेगा। इसलिए कुरान का मफहूम वही मिलेगा, कुरान की आयतें वही मिलेगी, लेकिन कागज नया होगा, किताब का वर्क नया होगा। इसलिए कि कुरान का अकीदा, मेरा अकीदा तो कुरान के बारे में है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद, आली जनाब इज्जत अवाम मौलवी अल्ताफ साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। शहादत नामा से मफहूम नहीं समझा जा सकता। आप केवल नात के टाइप पर या कव्वाली के टाइप पर आप उसे समाप्त कर ले, कुछ हासिल होने वाला नहीं, कुछ हासिल होना वाला नहीं। हमने पढ़ दिया ना 70,000 जख्म लगे एक जिस्म पर, घोड़े से दाह गिन पड़े होके लहू में तर। मतलब नात का मिसरा मतलब ये होता है पूरी हदीस को एक अंदाज में, एक लाइन में कह देना, पूरी हदीस का मफहूम एक शहर में कह देना। जैसे मैंने पढ़ा, पुल से उतार राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। इस हदीस को अगर मुताला करेंगे तो 2 वर्ग के अंदर गिरेगा, 2 वर्ग के अंदर। और इसको जब बटोर के मिसरा कर दिया गया तो 1 लिगार के अंदर बन गया। तो पता चला, हमने पढ़ दिया पुल से उतार राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। भैया जरा बताओ, अगर इतना समझ रखते हो तो जिब्रील कहाँ पर बिछाएंगे?
कहाँ पर बिछाएंगे? पता चलेगा अगर 100 बैठे हैं तो 10 को मालूम, बकिया 90 लोग ऐसे ही बस पुल पे बिछाया जाएगा। कहाँ बिछाया जाएगा नहीं मालूम, कब पुल कायम होगा नहीं मालूम। मेरे भाई तो हर चीज के पीछे शहादतनामा ही नहीं, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कुछ बातें आपके मुँह से गुजार कर दी जाए, जिससे आपको मालूम हो जाए कि मुहर्रम में क्या चीज जायज है और क्या चीज नाजायज है। आइए हम बताते हैं कि एक चीज हराम है, नाजायज है, वो क्या है? कहोगे बताओ हराम मुहर्रम के अंदर क्या है? तो जैसे इस्लाम के अंदर ढोल बजाना हराम है, बाजा बजाना हराम है, तो ये हराम है। अब इसे सारे मौलाना मिलकर अगर फतवा देंगे कि जायज है तो क्या जायज हो जाएगा? मोहम्मद रफी का फरमान है हराम है। दुनिया पलट सकती है, दुनिया पलट सकती है। आसमान अपना जमीन बन जाए तो बन जाए, जमीन आसमान हो जाए तो हो जाए, सूरज पश्चिम से निकल जाए तो निकल जाए, दरियाएं रुख बदल सकती हैं, हवाएं अपना फिजाएं बदल सकती हैं, ये कुर्सियां खत्म हो सकती हैं, मगर मुस्तफा की जुबान से निकली हुई बात कभी खत्म नहीं हो सकती। मुस्तफा की जुबान से जो बात निकलती है या तो हदीस मुस्तफा होती है या तो वही कुरान हुआ करती है। मुस्तफा पूरी जिंदगी बोले या तो कुरान बोले या तो हदीस बोले, कुरान बोले या तो हदीस बोले। अब चलिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ सूबे हैं जिनमें ताजियादारी होती है और कुछ नेपाल का हिस्सा है जिसके अंदर ताजियादारी होती है और कहीं ताजियादारी नहीं होती है। इसलिए कि हिंदुस्तान का एक बादशाह था, एक बादशाह सिया था जो जिसका नाम तैमूर है। इसने हर मुहर्रम में जाके इमाम हुसैन के रोजे पर इराक के अंदर हाजिरी दिया करता था। मगर जब ये बुढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, चलने की ताकत न रही, सफर की ताकत नहीं रही, इसलिए कि उस वक्त गाड़ी मोटर तो थे नहीं। उस वक्त लोग गधे या ऊंट या घोड़े के ऊपर सवारी किया करते थे, गधे पर खच्चर कहा जाता है, उनके ऊपर सवारी किया करते थे। सफर में कई दिन का अरसा लग जाया करता था, इसलिए वो जब ना जा सका तो इसके वजीर ने क्या किया, रोज़े हुसैन को बनवाया और रोज़े हुसैन को बनवा के इसकी बारगाह में इसके अदालत में पेश किया जहाँ पर बैठता था और फरमाया आप अब जा नहीं सकते हैं तो यहीं से इसकी जियारत कर लिया करें। जब ये देखा तो खुश हुआ और अपने वजीर को बहुत माल इकराम दिया से नवाजा गया। तो और लोगों ने देखा, वो भी बना बना के ले गए कि हमें भी राजा के यहाँ से इनाम मिलेगा। ये वहाँ से राइट हो गया। ठीक है, हम मना नहीं करते, हराम है, मगर कुछ चीजें हराम में भी रखी जाएंगी। हम मना नहीं करते कि ताजिया ना रखा जाए, मगर कुछ चीजें तो बिल्कुल हराम है, वो ताजिया के अंदर ना की जाए। जैसे कि आज हम मन्नत क्या मानते हैं? देखो, मन्नत इस्लाम में मन्नत का कोई वो नहीं है। मन्नत अगर मानना है तो नमाज की मानो, मन्नत अगर मानना है तो रोजे की मानो, मन्नत अगर मानना है किसी गरीब को हम खाना खिला देंगे, मन्नत मानना है किसी गरीब को हम कपड़ा पहना देंगे, ये हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम किसी गरीब की लड़की का निकाह करवा देंगे, या हमारा ये काम पूरा हो जाएगा हम किसी गरीब को हज के ऊपर भेज देंगे। ये सारी मन्नतें हैं। और ये मन्नत नहीं कि हाजी साहब हमारा लड़का, अगर हमारे घर में लड़का पैदा हुआ तो हम तुम्हारे सिरहाने बाल कटवाएंगे आके। ये मन्नत शरई नहीं है, ये मन्नत शरई नहीं है। मैंने देखा है ना औरतों को हाजी साहब के यहाँ जाके बाल बढ़वाती हैं, सैयद सालार मसूद गाजी के यहाँ जाके बाल बढ़वाती हैं। तुम्हारे बालों के भूसे सैयद सालार मसूद गाजी कल बरोजे महशर में पूछा जाएगा कि तुम इतनी बड़ी गुमराह हो गई कि मेरे नाम के ऊपर तमाशे बनाना शुरू कर दिया। मेरी माँ बहनें क्या कहती हैं, अगर मेरा लड़का बीमार है या इमाम हुसैन अगर लड़का मेरा सही हो जाएगा तो मैं पूरी पक्की चौकी भरूंगा, पूरी पक्की चौकी भरूंगा। अब पता चला ईसा से पहले ताजिया रख दिया गया। अब मेरी माँ बहनें पक्की चौकी भर ली, अब पूरी रात चलती रही, खड़ी रही, पूरा दिन चलती रही रोजे की हालत में। एक मन्नत के लिए 5 फर्ज छूटे,
एक मन्नत के लिए 5 फर्ज छूटे, ईसा छूटा, फजर छूटी, जोहर छूटी, असर छूटी, मगरिब छूटी। नबी फरमाते हैं जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देगा 1,88,000 बरस जहन्नम में चलेगा। कौन सी मन्नत जायज है और कौन सी नाजायज? बिल्कुल के बाद कहना चाहता हूँ, अगर ये बताओ चौकी भरे में पक्की चौकी में ये होता है कि अगर बैठ जाओगे तो चौकी टूट जाएगी। यहाँ रुक एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा नहीं आए थे, मुस्तफ़ा नहीं आए थे, लोग गुमराह थे, मुस्तफ़ा आ गए, गुमराही खत्म हुई। पता चला अगर मेरे घर के अंदर जिहालत थी, जब तक हम पढ़े नहीं थे, जब हमें मालूम हो गया कि नाजायज हराम है, हम इससे दूर हो गए। कुछ औरतें मेरे ऊपर तहमत लगाती हैं कि तुम्हारी माँ भी चौकी भरा करती थी। मैं मानता हूँ जब उन्हें मालूम नहीं था भरती थी, हमने मना कर दिया हराम है, जायज नहीं, बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मेरी माँ बहनों सुनो, अब उस चौकी भर के अंदर अगर बैठना से टूट जाती है, अगर इस्तिंजा लग गया, बताओ क्या करोगी? खड़े होकर पेशाब पैखाना करना हराम है। भैया कहाँ जिहालत की गुमराही के अंदर पल रहे हो? अरे निकलो बाहर, 5 वक्त की नमाज जा रही है तुम्हारी एक हरामकारी के लिए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कल बरोज़े महशर में दामन पकड़ लेगी और कहेगी बताओ तुमने कितना मेरे बेटे से मोहब्बत की कि मेरा बेटा करबला के आयन लड़ाई के अंदर जब लड़ाई चल रही है और नमाज का वक्त आ जाता है तो इमाम हुसैन को ये खौफ नहीं होता है कि मेरा 18 साल का नौजवान बेटा कुर्बान हो गया है, मेरा 6 माह का बेटा कुर्बान हो गया है, मेरे भाई का कासिम शहीद हो गया है, मेरी बहन की गोद सोनी हो गई है, मेरे चाचा अब्बास अलमदार के बाजू काट लिए गए हैं, मेरे खानदान को नष्ट नाबूद कर दिया गया है, मेरी तलवार बंद नहीं होगी। नहीं, नमाज का वक्त आता है, इमाम हुसैन की तलवार बंद हो जाती है, अपने सर को सजदे के अंदर रखते हैं, अल्लाह की रबूबियत बयान करते हैं, सजदे के अंदर सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। कल बरोज़े महशर में अगर फातिमा ने पूछ लिया बताओ तुमने मेरे बेटे नमाज के अंदर नमाज को बचाया था करबला के अंदर और तुमने 5 नमाजें खराब कर क्या जवाब दिया जाएगा? हम शहादतनामा पढ़ के क्या लेंगे? हम शहादतनामा पढ़ के क्या सुनेंगे मेरे भाई? बताओ तो, गौर करो, दिल पे हाथ रखो। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई जिनका नाम हजरत इमाम हसन है, अभी हजरत जैनब छोटी है, हजरत कासिम छोटे हैं, हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन से छोटे हैं, अली का इंतकाल ही शहीद कर दिए जाते हैं, हजरत माविया को इमाम हसन खलीफा बनाते हैं, इमाम हसन का दौर है, हजरत इमाम हसन को 3 मरतबा जहर पिलाया गया, 3 मरतबा रोज़े रसूल पे गए, नाना जान तकलीफ हो रही है, शिफा मिलती रही, तीसरे बार चौथे मरतबा जब हजरत हसन को जहर पिलाया गया तो ऐरू गैरू नत्थू खैरू जहर नहीं बल्कि हीरे को पीस के मस्कीजे के अंदर डाला गया और उस मस्कीजे के अंदर डाल के पानी डाल के हीरा पिलाया गया। और जब इमाम हसन को हीरा पिलाया गया तो इतनी तकलीफ होती थी, अगर किताब देखोगे, अगर पढ़ोगे तो आंखें खुद आंसू छोड़ देंगी, इसलिए कि इमाम हसन का जब उल्टी होती हीरा जिस्म के अंदर काटता और जब इमाम हसन की उल्टी होती ना तो फरमाते दसल के अंदर जब इमाम हसन उल्टी करते तो दिल के कलेजे कट कट के गिरा करते दस्त के अंदर, दिल के कलेजे कट कट के गिरा करते थे दसल के अंदर। इमाम हुसैन है, फरमाया भैया क्या बात है? इमाम हसन ने फरमाया हुसैन सब्र करना, हुसैन सब्र करना, इसलिए कि नाना का वादा है कि अल्लाह साबिरों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हुसैन सब्र करना दस्तक की कह होती है, इमाम हुसैन हसन के कह होती है। इमाम हुसैन दसल निकालते हैं पलके की दर से, चारपाई की दर से निकालते हैं, उसमें कह की जाती है, उससे अंदर बढ़ाया जाता है। एक छोटा सा बच्चा है जो दौड़ के आता है, चारपाई के ऊपर चढ़ जाता है, इमाम हसन के सीने के ऊपर
सर रखता है और लेट जाता है, अंदर से आवाज आती है, बेटा कासिम सर को बाबा जान के सीने से हटाओ, बाबा जान को ज्यादा तकलीफ हो रही है। इमाम हसन की आंखों से आंसू निकलते हैं, फरमाते नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं मेहमान हूँ, मेरे कलेजे को कलेजे से लगा रहने दो, मेरे कलेजे को कलेजे से लगा रहने दो, वो शिद्दत की तकलीफ है। इमाम हसन की निगाहों के सामने इमाम हुसैन के क्या तकलीफ है इमाम हसन को। मेरे भाई जरा गौर तो करो कि छोटा भाई देख रहा है और बड़ा भाई कितनी मुसीबत के अंदर मुब्तला है, कैसे शहीद हो रहा है, जब तक की उल्टी होती है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए भैया ऐसा करो, ये तसर पलके के नीचे कर दो, चारपाई के नीचे कर दो, कहीं मेरी बहन जैनब न देख ले, कहीं मेरी बहन जैनब न देख ले। जब तक कि इमाम हसन की तय होती है और ये एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र 6 साल की है, वो बाहर निकलती है और जैसे तय होती है, जब तसर इतनी जल्दी न खींची जा सकी चारपाई से, उस बच्ची ने अपना ये जो जंपर होता है उसे आगे कर दिया, कहा भैया इसी में गए लोग गए। और जब उसमें गए कही जाती है तो देखते हैं कि क्या कलेजे के टुकड़े कट के आए हैं जो उसमें उछल रहे हैं, दामन के अंदर उछल रहे हैं। ये नीची बच्ची 6 साल की बच्ची ने देखा, कहा भैया कि ये क्या है, ये मेरे दामन में क्या उछल रहा है। फरमाया जैनब सब्र करना, इसलिए कि नाना जान ने फरमाया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्यों फरमाया गया, इमाम हसन की शहादत हो जाती है और जब इमाम हसन की शहादत हुई, इमाम हसन को नहलाया गया और नहलाने के बाद कफन पहनाया गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब ले जाके रख दिया गया। अम्मा ऐसा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया गया, अगर आप इजाजत दें तो नाना जान के घर में नवासे को लिटा दिया जाए, दफन कर दिया जाए। मेरे भाई उस वक्त मरवान, उस वक्त एक काफिर, एक मुर्तद तो कलमा पढ़ने वाला तो था, मगर कहता है नहीं, यहाँ हम नबी के नवासे को दफन होने नहीं देंगे। और इमाम हसन के जनाजे के ऊपर तीर चलाए गए, एक तीर नहीं बल्कि 17 तीर चलाए गए जनाजे के ऊपर, जिसे साज के रखा गया था नमाज जनाजा के लिए। यूँ फरमाया, इमाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि नाना के मदीने के अंदर खून रेती हो, मेरे नाना का मदीना के अंदर बेदबी हो, इसकी इज्जत और आबरू को पैमाल किया जाए। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को अवाम कब्रिस्तान में दफन कर दूंगा। इमाम हसन के जनाजे को वापस लाया जाता है, इमाम हसन के जिस्म से तीरों के निकाला जाता है। अब कफन जो था खून से गीला हो गया, उस कफन को हटाया गया, दूसरा कफन, दूसरी चादर दी गई और फिर जन्नतुल बकी के अंदर इमाम हसन को दफन किया गया। इमाम हसन को जन्नतुल बकी के अंदर दफन किया गया। ये वो घराना है, ये वो घराना है जो शुरू से जुल्म सहता हुआ आया करबला के मैदान तक। शुरू से करबला के मैदान तक ये घराना जुल्म सहता हुआ आया। आइए हम फिर मदीनतुल मुनव्वरा लौटे चलते हैं। जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए, उस वक्त यजीद जब मुल्क शाम के अंदर तख्त पे बैठा तो वलीद उस वक्त मदीने का हाकिम था, वलीद बिन उक़बा। उक़बा बिन वलीद उस वक्त मदीने का हाकिम था। यजीद ने उनको एक खत लिखा, ऐसा करो हजरत मुआविया का इंतकाल हो गया है और उनके बदले मैं तख्ते नसीब हुआ हूँ, हुसैन से मेरी बैयत करा लो, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से मेरी बैयत करा लो। ये कुछ सहाबा इकराम के चंद नाम लिख के कहा इनसे बैयत करा लो, अगर ये लोग मान जाएंगे तब तो हम हुकूमत करने के काबिल हो जाएंगे, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम हुकूमत करने के काबिल नहीं होंगे। इमाम हुसैन को वलीद ने बुलाया और फरमाया कि ऐसी ऐसी बात है, आप बैयत कर लें। कहा नहीं, मैं बैयत नहीं करूँगा, इसलिए कि यजीद फासिक को शराबखार है, अगर ये बैठ गया तो ये नाना के दीन के अंदर कमी कर देगा, इसके अंदर जो आएगा वो जायज कर देगा दीन के अंदर, इसलिए मैं इसकी बैयत नहीं करूँगा। यहाँ रोक के एक मसला और अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाई, जरा वो भाई गौर करें जो आज अपने जवानी के खून के अंदर, जवानी के खून के अंदर अपने बुढ़ापे की बर्बादी को नहीं समझते, जवानी में जवान खून से के जरिए से अपनी कब्र की मंजिल को नहीं समझते क्या गुजरेगी। हम शराब पी के उसी मुंह से इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, हम शराब पी के उसी मुंह से इमाम हुसैन का नाम लेते हैं,
اور امام حسین نے تو کہا تھا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یزید شرابی ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید نماز چھوڑنے والا ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، یہ شراب پینے والا ہے۔ میرے کچھ مسلمان بھائی، سب کو نہیں کہتا، کچھ نوجوان جوانی کا خون ہے اور دوستی کا یہ ماحول ہے، پی لو ایک گھٹ کیا ہونے والا ہے، مگر یہ دوست بڑھاپے کے اندر ساتھ نہیں دیں گے۔ جب اللہ کی مار قبر کے اندر پڑے گی، جب ابھی تو اللہ لیتا ہے، بندہ لیتا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب بندہ دے گا اور اللہ لے گا، بندہ دے گا اور اللہ لے گا، وہ قبر کا منزل ہوگی۔ قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا۔ جن دوستوں کی خاطر آج ہم نے والدین کی عزت کو پامال کر دیا، ماں بہنوں کی عزت کو برباد کر دیا، جس دوست کی خاطر ہم نے مصطفیٰ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا، وہ دوست کل کام نہیں آنے والا۔ کل قبر میں اگر کوئی کام آنے والا ہے تو حسین کا نانا، حسین کا نانا ہے۔ تو میرے بھائی ذرا غور تو کریں، امام حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ جب پریشان کیا گیا، روضہ رسول پر گئے، روئے، آخرکار امام حسین نے کہا میں مدینہ میں نہیں رکوں گا، مدینے سے مکہ المکرمہ چلا آتا ہوں، اس لیے کہ نانا جان کے مدینے کے اندر اگر کوئی خرافات ہوگی، خون ریزی ہوگی تو مدینے کی بے ادبی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ عزت پامال کی جائے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ کیا، کہا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں۔ آپ نے اپنے اعزاز و اقارب کو حکم دیا کہ ایسا کرو، سامان تیار کرو، ہم لوگ رات میں نکل لیتے ہیں، صبح فجر کی اذان سے پہلے ہمارا قافلہ نکل لے گا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین حضرت زینب سے فرماتے ہیں بہن سارا سامان باندھ لو، جو گھر کی ضروریات چیزیں ہیں وہ رکھ لو، اور ہم لوگ سارے کے سارے یہاں سے نکل لیں گے۔ آپ رات میں نانا کے روزے پر گئے، روتے رہے کہ نانا اسی مدینے میں پیدا ہوا، اسی مدینے کے اندر میں پیدا ہوا، اور اسی مدینے کے اندر آج میری اتنی عمر آئی، نانا کبھی جدا نہیں ہوا۔ ذرا ان حاجیوں سے پوچھو جو مدینہ جاتے ہیں، جو مدینہ جاتے ہیں اور مدینے سے پلٹتے ہیں تو دل نہیں کہتا پلٹنے کا کہ کاش یہی موت آ جائے تو بہتر ہوتا، کاش یہی موت آ جاتی تو بہتر ہوتا۔ اس مدینے کو امام حسین چھوڑ رہے ہیں جہاں ماں کی قبر ہے، جہاں بھائی حسن کی قبر ہے، جہاں نانا کی قبر ہے، جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ میری قبر کے اوپر جو آئے اور میری قبر کی زیارت کر لے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کی حدیث پاک ہے، اس مدینے کو چھوڑ رہے، نانا سے رخصت لیتے ہیں، ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، رو کر کہا امی جان ہم چھوڑ رہے ہیں، بھیا حسن کی قبر پہ جاتے ہیں، اجازت مانگتے بھائی آج مشکل ہے، چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہاں سے جا رہے ہیں، گھر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بہن کو کہتے ہیں سارا سامان تیار کیا جائے، سارے لوگوں کو بیدار کیا جائے، چلو تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد کی نماز پڑھ لی جائے۔ لوگ وضو کرتے ہیں، تہجد کے لیے مصلی بچھاتے ہیں۔ امام حسین جب اپنا مصلی بچھاتے ہیں تو ایک بیٹی قریب میں لیٹی ہوئی ہے جس کا نام سغرا ہے، جس کا نام سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بیٹی معصوم ہے، لیٹی ہوئی ہے۔ جب اس کے قریب امام حسین جاتے ہیں نا تو آنچ لگتی ہے، آپ ہاتھ رکھتے ہیں جسم کے اوپر فوراً ہٹا لیتے ہیں، اتنا شدت بخار ہے کہ ہاتھ رکھا نہیں جاتا، مگر ادھر نماز کا وقت تہجد کا جا رہا ہے۔ آپ نے بیٹی کی بخار کو نہ دیکھا، آپ نے حمد و ثنا کی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اس کے بعد کہا کہ ایسا کرو چلو ہم قافلہ نکالتے ہیں۔ سارا سامان باہر نکالا گیا، حضرت زینب سے کہا گیا اے میری پیاری بہن زینب ذرا سغرا کو جگاؤ تو اسے ایک بار ملاقات تو کر لی جائے، اسے ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا بھروسہ ہم لوٹ کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ حضرت سغرا کو جگایا جاتا ہے، پانی کا چھینٹا مار کے ہوش کے اندر لایا جاتا ہے۔ جب حضرت سغرا نے دیکھا کہ پورا گھر ساجو سامان باندھے ہے، ننھا اصغر بھی جا رہا ہے، حضرت سکینہ بھی جا رہی ہے، پھوپھی جان بھی جا رہی ہے، پھوپھی جان کے دونوں بیٹے محمد اور عون بھی جا رہے ہیں، حضرت قاسم بھی جا رہے ہیں، حضرت قاسم کی والدہ بھی جا رہی ہیں، حضرت علی اصغر جا رہے ہیں، حضرت علی اکبر جا رہے ہیں۔ یہ
सारे लोग जा रहे हैं। बेटी पूछती बाबा जान कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। कहा नहीं बेटी तुम नहीं चल सकती, इसलिए कि तुम्हारी तबीयत अनीर है और बीमारी के आलम में सफर में ले जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए तुम घर के ऊपर रुको। जब तुम बीमारी से शिफा मिल जाएगी, बीमारी से अच्छी हो जाओगी, हम फिर सब हजरत अली अकबर को भेज के तुम्हें बुलवा लेंगे। जरा गौर करना मेरी बात पे। अगर हम आज अपनी छोटी बेटी को घर के अंदर छोड़ के हमें यकीन हो कि हम आज सारा सामान लेके जा रहे हैं, अब कभी हम झटपड़वा के अंदर पलट के नहीं देखेंगे तो दिल पे क्या गुजरती है, इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी मेरे भाई। बेटी को छोड़ रहे हैं, हजरत सुगरा देखती है कि सब तो जा रहे हैं मगर मुझे नहीं ले जाया जा रहा है। कहा बाबा जान क्यों नहीं ले चलते हो, अगर रास्ते सवारी के ऊपर जगह नहीं ना तो हम पैदल चल सकते हैं, हम पैदल चलेंगे, मगर बाबा जान मुझे तनहा ना छोड़ो, मैं जरूर चलूंगी। कहा नहीं बेटी तुम नहीं चल सकती। कहा बाबा जान तुम इसलिए नाराज हो कि हम अली असगर को झूला नहीं झुलाते हैं, बाबा जान मुझे ले चले, हम अली असगर को झूला झुलाएंगे, बाबा जान मुझे ले चले, मैं कभी खाने का मुतालबा तुमसे नहीं करूंगा, बाबा जान मुझे ले चले, मैं कम से तुमसे कभी नए कपड़े नहीं तलब करूंगा, बाबा जान मुझे तनहा यहाँ ना छोड़े, मेरा यहाँ है कौन जो तुम छोड़ के जा रहे हो, बाबा जान कहाँ जा रहे हो। हजरत हुसैन की आंखों आंसू हैं, हजरत हुसैन की आंखों से आंसू बरस रहे हैं, किस बेटी को हमें छोड़ के आज जाना हो रहा है। हजरत सुगरा के रुकन पर तारी गसी तारी होती है, बेहोश हो जाती है, हजरत सुगरा को फिर लाके पानी छिड़का जाता है, रोज के रोज लाया जाता है। हजरत 6 माह के बच्चे अली असगर को हजरत सुगरा के गोद में दिया जाता है, बेटी गोद में लेती है अपने भाई को, तो बुखार की इतनी शिद्दत है कि हजरत अली असगर रोने लगते हैं, जब रोने लगते हैं तो हजरत सुगरा चूमती है और फरमाती बाबा जान इसे ले लो, इसलिए कि मेरे बदन के अंदर इतनी जलन हो रही है कि मेरे बेटे को, मेरे भाई को तकलीफ हो रही है, मेरे भाई को तकलीफ हो रही है। अब इमाम हुसैन अपनी बेटी को छोड़ के खुदा के वास्ते कहते बेटी मैं पलट के जरूर आऊंगा, अगर नहीं आऊंगा तो तुम्हारे भाई को भेजूंगा, वो तुमको जब अच्छी हो जाओगी लेके जाएगा। मेरे भाई अपने छोटी सी बच्ची को छोड़ रहे हैं, अपने घर का सामान लाता जाता है, अब ये काफिला फजर से पहले चल देता है, ये काफिला जहाँ तक चलता है, जहाँ तक मदीना दिखाई देता है, मुड़ के देखते हैं, मुड़ के इमाम हुसैन मदीने की तरफ देख रहे हैं कि आज नाना का मदीना छूट रहा है, आज नाना का मदीना हमसे जुदा हो रहा है, आज हम नाना के मदीने को छोड़ रहे हैं, अपने सुगरा को छोड़ रहे हैं। इसीलिए मजमूए शहादत के अंदर कहा गया सुगरा पिछाड़ खा के गिरी फिर जमीन पर, माँ बाप के बिखरने का सदमा है सख्तर, सुगरा का फर्तगों से आलम था रजा का, मक्का की सिंध सरवरे आलम लगा हुआ, आंखों में मिसलकार खटकता था हर दियार, मुड़ के देखते थे मदीने को बार।